یہ وہ وقت تھا جب تاریخ ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی، ایک ایسا موڑ جہاں ایک عظیم ذمہ داری ایک عظیم انسان کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد امت کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو نہ صرف مضبوط ہو بلکہ عدل و انصاف کا زندہ نمونہ بھی ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ صرف ایک عہدہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایک ایسی ذمہ داری جس میں پوری امت کا بوجھ شامل تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے عزت و طاقت کے طور پر نہیں لیا بلکہ ایک امانت سمجھا، ایک ایسی امانت جس کا جواب انہیں اللہ کے سامنے دینا تھا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ دیا اس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں سیدھا رہوں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اور یہ الفاظ ایک حکمران کے نہیں بلکہ ایک عاجز بندے کے تھے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا۔ آپ کی خلافت کا آغاز سادگی سے ہوا، نہ کوئی شاہی لباس، نہ کوئی محل، نہ کوئی پروٹوکول۔ آپ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ کے کپڑوں پر پابند ہوتے تھے، آپ زمین پر سوتے تھے اور خود اپنا کام خود کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ایک حکمران کا اصل کام خدمت ہے، حکمرانی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا وصف تھا انصاف، ایسا انصاف جو اپنے اور غیر میں فرق نہیں کرتا تھا۔ ایک بار ایک عام شخص نے آپ سے شکایت کی اور آپ نے فوراً اس کی بات سنی، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کے خلاف بھی بات کرتا تو آپ اسے بھی توجہ سے سنتے، کیونکہ آپ کے نزدیک حق سب سے اہم تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے بدلہ دلایا، اور پھر فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی مائیں انہیں آزاد پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہ انصاف تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں۔ ایک رات آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے اور ہانڈی میں صرف پانی ابال رہی ہے تاکہ بچی یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر رو پڑے، فوراً بیت المال گئے، خود آٹا اٹھایا، اپنے کندھے پر رکھا اور اس عورت کے گھر پہنچے، خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ یہ وہ حکمران تھا جو اپنے عوام کے لیے خود مزدور بن جاتا تھا۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت تیزی سے پھیلنے لگی، فارس اور روم جیسی بڑی طاقتیں شکست کھانے لگے۔ مسلمانوں نے شام فتح کیا، مصر فتح کیا، عراق فتح کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی فتوحات کو اپنی کامیابی نہیں سمجھا بلکہ اسے اللہ کی مدد قرار دیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو ایک تاریخی منظر سامنے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود مدینہ سے بیت المقدس گئے، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی شان و شوکت، صرف ایک اونٹ اور ایک خادم۔ راستے میں آپ دونوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس پہنچنے کا وقت آیا تو باری خادم کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اونٹ کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔ جب شہر کے لوگ آپ کو دیکھنے آئے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی بادشاہ آئے گا، لیکن یہاں ایک سادہ لباس پہنے انسان تھا جس کے کپڑوں پر پابند تھے۔ لیکن یہی سادگی، یہی عاجزی آپ کی اصل عظمت تھی۔ اپنے بیت المقدس میں داخل ہو کر ایک ایسا معاہدہ کیا جس میں تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی، کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، کسی کا حق نہیں چھینا گیا۔ یہ وہ انصاف تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مضبوط نظام قائم ہوا، بیت المال کا نظام، عدالتی نظام، پولیس کا نظام،
हर चीज को मुनज़्ज़म किया गया। अपने गवर्नरों को सख्ती से हिदायत दी कि वो अवाम के साथ इंसाफ करें और अगर किसी ने जुल्म किया तो इसे मुआफ नहीं किया जाएगा। आप खुद अपने गवर्नरों का एहतिसाब करते थे, उनके माल का हिसाब लेते थे और अगर किसी पर शक होता तो फौरन कार्रवाई करते थे, क्योंकि अब जानते थे कि एक हुक्मरान की गलती पूरी कौम को मुतासिर करती है। आपकी जिंदगी का हर दिन, हर रात उम्मत के लिए वक्फ थी। आपको अपनी जात की कोई फिक्र नहीं थी। आप सिर्फ एक चीज से डरते थे और वो था अल्लाह का हिसाब। आप फरमाया करते थे, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उम्र से इसका हिसाब लिया जाएगा। ये वो एहसास जिम्मेदारी था जो आपको बाकी सबसे अलग बनाता था। ये वो दौर था जिसे तारीख आज भी सुनहरी दौर कहती है। एक ऐसा दूर जहां इंसाफ था, अमन था, तरक्की थी और सबसे बढ़कर अल्लाह का खौफ था। लेकिन हर उरूज को ज़वाल है और एक वक्त ऐसा भी आया जब ये अजीम दास्तान एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी। अगर आप चाहते हैं कि आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, उनकी शहादत और उनके अजीम पैगाम को जानें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला हिस्सा आपके दिल को हिलाकर रख देगा। ये एक ऐसा बाब है जिसके आखिरी लम्हात भी इंसान के दिल को हिलाकर रख देते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए गुजारी, जो हर फैसले में अल्लाह के खौफ को सामने रखता था, जो रातों को जाग कर अपनी रियाया का हाल पूछता था और दिन में एक मजबूत हुक्मरान के तौर पर अदल कायम करता था। आज हम इस अजीम हस्ती की जिंदगी के आखिरी बाब में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसा बाब जिसमें सब्र भी है, कुर्बानी भी है और एक अजीम अंजाम भी। मैं हूं इरफान खालिद और आप देख रहे हैं तारीख के वो सुनहरी लम्हात जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ईमान को जिंदा कर देने वाली हकीकत है। आज हम बात करेंगे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के इस हिस्से की, जहां एक अजीम हुक्मरान, एक सच्चा मोमिन अपने रब से मुलाकात के करीब पहुंच रहा था। और वो लम्हे जो हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा इंसान आखिरी वक्त में भी कैसा होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दूर खिलाफत अपने उरूज पर था। इंसाफ का निज़ाम मजबूती से कायम हो चुका था। इस्लामी सल्तनत दूर दूर तक फैल चुकी थी। हर तरफ अमन था। लेकिन एक सच्चा मोमिन कभी अपनी कामयाबी पर गुरूर नहीं करता, बल्कि वो हमेशा डरता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं अल्लाह के सामने जवाबदही में नाकाम ना हो जाऊं। आप अक्सर रात के वक्त उठते, खामोशी से दुआ करते और रोते। आप कहते, ए अल्लाह, अगर तो मुझे मुआफ ना करे तो उम्र तबाह हो जाएगा। ये वो अल्फाज थे जो एक ऐसे इंसान की ज़बान से निकलते थे जिसके पास पूरी दुनिया की ताकत थी, लेकिन दिल में खौफ सिर्फ अल्लाह का था। यही वो चीज़ थी जो आपको बाकी सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। एक रवायत के मुताबिक आप रात के वक्त मदीना की गलियों में निकलते, कभी किसी के दरवाजे पर खड़े होकर हालात सुनते, कभी किसी गरीब के घर जाकर मदद करते। एक बार आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत चिकी पेश रही है। आपने पूछा कि कोई मदद करने वाला नहीं, तो उसने कहा कि खलीफा को हमारी खबर नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर खामोश हो गए, वापस गए, खुद आटा उठाया और उसके घर पहुंचे, खुद चिकी पीसी और उसकी मदद की। ये वो हुक्मरान था जो अपने आप को अवाम का खादिम समझता था। लेकिन दुनिया का ये निज़ाम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हर अज़मत को आजमाइश का सामना करना पड़ता है। और फिर वो दिन आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। फजर का वक्त था। मदीना की फिजा में सुकून था। लोग मस्जिद नबवी में जमा हो रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, इमामत के लिए खड़े हुए।
नमाज शुरू हुई। हर तरफ खुशू था, हर तरफ सुकून था। लेकिन अचानक एक साया हरकत में आया। एक शख्स, अबू लाला फिरोज, जो अंदर ही छुपा हुआ था, इसने खंजर निकाला और अचानक हमला कर दिया। इसने एक के बाद दीगरे कई वार किए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु शदीद जख्मी हो गए। मस्जिद का सुकून टूट गया। लोग घबरा गए, सफ़ें बखर गईं। लेकिन इस हंगामे में भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की फिक्र अपनी ज़ात की नहीं थी। आपने सबसे पहले पूछा, नमाज मुकम्मल हुई या नहीं? जब बताया गया कि नमाज मुकम्मल हो गई तो अपने सजदा शुक्र अदा किया। ये वो मंजर था जो दुनिया में शायद ही कभी देखा गया हो। एक जख्मी हुक्मरान खून में डूबा हुआ, लेकिन फिक्र सिर्फ इबादत की। आपको घर ले जाया गया। सहाबा किराम जमा हो गए। हर आंख नम थी, हर दिल गमगीन था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा अजीब सुकून में था। आपको मालूम था कि अब मुलाकात करीब है। अब वो लम्हा आने वाला है जिसके लिए एक मोमिन पूरी जिंदगी तैयारी करता है। आपने अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को बुलाया और फरमाया, जाकर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से इजाजत ले आओ कि मुझे मेरे दोनों साथियों के साथ दफन होने दिया जाए। ये वो आजिज़ी थी जो एक अजीम इंसान की पहचान होती है। आप चाहते तो हुक्म दे सकते थे, लेकिन आपने इजाजत मांगी। जब इजाजत मिल गई तो आपके चेहरे पर सुकून आ गया, जैसे दिल को करार मिल गया हो, क्योंकि अब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ आराम करने वाले थे। ये वो एजाज था जो हर किसी को नसीब नहीं होता। अपने आखिरी लम्हात में भी अपने उम्मत को नहीं भुलाया। अपने एक शूरा कायम की। 6 बड़े सहाबा किराम को जिम्मेदारी दी ताकि वो आपके बाद खलीफा का इंतखाब करें। आपने हर चीज को मुनज़्ज़म किया ताकि उम्मत में इख्तिलाफ ना हो, क्योंकि अब जानते थे कि इत्तेहाद ही ताकत है। आप बार बार अल्लाह से दुआ करते, मुआफ़ी मांगते और कहते, काश में कुछ भी ना होता, काश में पैदा ही ना होता। ये वो आजिज़ी थी जो एक अजीम इंसान के दिल में होती है। हालांकि आपकी जिंदगी का हर लम्हा कामयाबी से भरा हुआ था। फिर वो लम्हा आया जब रूह अपने रब की तरफ लूट गई। मदीना की फिजा सुगवार हो गई। लोग रो रहे थे, हर तरफ गम था। एक ऐसा सुतून जिस पर इंसाफ कायम था, आज दुनिया से रुखसत हो गया था। आपको इसी जगह दफन किया गया जहां आपकी ख्वाहिश थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ। ये वो मकाम था जो आपकी अजमत की गवाही देता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि ताकत का असल मतलब खिदमत है, इंसाफ है, अल्लाह का खौफ है और आजिज़ी है। अगर एक हुक्मरान चाहे तो वो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो खुद को बदल ले। आज भी जब इंसाफ की बात होती है तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का नाम लिया जाता है। आज भी जब एक मिसाली हुक्मरान की मिसाल दी जाती है तो आपका जिक्र किया जाता है, क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक मेयार थे। एक ऐसा मेयार जिस पर हर हुक्मरान को खुद को परखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ईमान अफरोज, दिल को छू लेने वाली और हकीकत पर मबनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ताकतवर तारीख लेकर आते रहेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम अलैकुम।